देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଆଜିଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛୁଟି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାପାନ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 12ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯେଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଓ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, 3 ଦିନ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ତତଲା କଢ଼େଇରେ ସିଝୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଯେପରି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି। ସକାଳ 8ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 13, 14, 15 ତାରିଖକୁ ହିଟୱେଭ୍ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଆହୁରି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କମିଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଦେଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଲା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଲା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା। ଗତ ମାସ 27ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବା ନାକ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଫେରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ୟୁଜିସି ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 3.1 ସିଜିପିଏ ମାର୍କ ସହ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି 25 ବର୍ଷର ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଖେଳିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କିଲ୍ ଫୋରମରେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇଟିଆଇରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ପାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦକ୍ଷତା ପରିସଂସ୍ଥାନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ସବୁଠି ପଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 12ଟି ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଜାଲିଆତି ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର, ଜାରି କଲେ ଗାଇଡଲାଇନ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ଓ ଜାଲିଆତି କରି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରୁଥିବାର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡରେ ଜାଲିଆତି ଓ ଦୁରୁପଯୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିତାଧିକାରୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡର ନବୀକରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କର ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ନିଜର ସଠିକ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଏସ୍କେୱାଇ ଆଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ସ୍ୱତଃ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଏସ୍କେୱାଇରେ 3 ପ୍ରକାର ତନଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କାନ୍ ଓ ଓଟିପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ଏଥର ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି କହିଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ସବୁଥର ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କାଲି ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
तेबे एलनिनोर प्रभाव मौसुमी बेड़े सृष्टि हेबार आशंका रही तेणु यह वर्ष को प्रभावित करें बोली कहुযাଉଛି। जून रु सेप्टेम्बर मध्य मौसुमी प्रभाव में 96% वर्षा हेब। यार अर्थ स्वाभाविक वर्षा हेब। 96% रु ±5% वर्षा को स्वाभाविक वर्षा कहुଯାଏ। तेबे मौसुमी केबे प्रवेश करिवो ओ केउ अंचल केते वर्षा हेबो से कथा आईएमडी एबे कहि नाही। आसंता मास प्रथम सप्ताह रे आईएमडी पक्षरु विस्तृत सूचना दियाजिवो बोली जणा पड़िछि। सारा देश रे स्वाभाविक वर्षार आकलन होइथिले मध्य उत्तर पश्चिम भारतर किछि राज्य रे स्वाभाविक ठारु कम वर्षा हेबार आशंका रहिछि। नंबर 7 ओडिशार सहारा जमाकारी फेरी पाइबे अर्थ केन्द्रर निर्देश क्रमे तथ्य दाखल करुछि राज्य। अर्थ फेरी पाइबा आशारे अनै बसिछन्ति सहारार अर्थ निवेश करिथिबा हजार हजार लोक। एसबु भितर सहारा इंडियार केन्द्र सरकारक निर्देश क्रमे राज्य एमानक आर्थिक कारबार संपर्कित तथ्य दाखल करुथुबा जणा पड़िछि। राज्य रे केतेक निवेशकारी रहिछन्ति, निवेशर मूल्य केते, काहाकु टंका मिली सारिलाणी ओ काहाकु मिली नाही ए संपर्कित तथ्य दाखल करुछि समवाय विभाग। सूचना अनुसार केन्द्र समवाय समिति निबंधकଙ୍କୁ राज्यर 26टी जिल्ला रे सहारा रे निवेश होइथिबा अर्थ संपर्कित तथ्य प्रदान करि सारिथिबा बेले बड़का 4टी जिल्लार तथ्य बाकी अछि। तेणु एही 4टी जिल्लार तथ्य यथाशीघ्र दाखल करिबा पई केन्द्र समवाय समिति निबंधक राज्य सरकार को निवेदन करिसंती। या परे उप और सहकारी निबंधक मानक जरिया रे तथ्य संग्रह नहीं राज्य समवाय निबंधक निर्देश देइछंती। नंबर 8 भारतर प्रथम आरईआईटीज एवं आईएनवीआईटीज सूचकांक आरंभ कला एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड रो शाखा नेशनल इंडेक्स लिमिटेड मंगलवार भारतर प्रथम रियल इस्टेट एवं भित्तिभूमि निवेश ट्रस्ट सूचकांक आरंभ नहीं घोषणा करिछि। यार सर्ट टर्म ना निफ्टी आरईआईटीज इंडेक्स एवं निफ्टी आईएनवीआईटीज इंडेक्स रखा जाइछि। एही सूचकांक एनएससी रे सूचीबद्ध एवं कारबार करुथुबा आरईआईटीज एवं आईएनवीआईटीज रे प्रदर्शन को ट्रैक करिवो। रिट्स रियल इस्टेट परियोजना रे निवेश करिथांती। अन्यपटे आईएनवीआईटीज दीर्घमियाद भित्तिभूमि परियोजना रे निवेश करंती। यह एक प्रकार ट्रस्ट होइथाए। यह जरिए निवेशक भिन्न भिन्न प्रकार रे नियमित रूप से आय देउथुबा रियल इस्टेट किंबा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट रे निवेश करिथांती। नंबर 9 20,000 कोटी निवेश हिसाब देला अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप को नहीं उठिथिबा निवेश झड़ थमिबार ना धरू नाही। फाइनेंशियल टाइम्स को जवाब देइछि कंपनी। 20,000 कोटी टंका निवेश हिसाब देइछंती कंपनी कर्तृपक्ष। या सहित अदानी ग्रुप को नहीं फाइनेंशियल टाइम्स देइथिबा रिपोर्ट को खारज करिछि। 2023 मार्च 22 रे देइथिबा तथ्य को भूल प्रमाणित करिछि। फाइनेंशियल टाइम्स अदानी ग्रुप को नहीं एक रिपोर्ट प्रकाश करिथिला। एथिरे कंपनी 2017 रु 2022 मध्य विदेशी बेनामी कंपनी माध्यम 20,000 कोटी टंकार निवेश करिछि बोली उल्लेख रहिछि। हेले अदानी ग्रुप फाइनेंशियल टाइम्स को लिखिथिबा चिठी को सार्वजनिक करिछि, जोथिरे फाइनेंशियल टाइम्स रो रिपोर्ट को भूल कुहाजिबा सहित किछि तथ्य को एथिरे जानिशुणी अणदेखा करा जाइछि। कंपनी प्रमोटर 2टी कंपनी रो शेयर को बिक्री करी 20,000 कोटी को एक नुआ कंपनी रे निवेश करिछि बोली कहिछि। नंबर 10 एक मास परे पुणी 60,000 टपिला सेंसेक्स। बैंकिंग एवं ऑटो शेयर डिमांड एवं मार्च मासरे कंपनी गुड़िकर आय भल रहिबा अनुमान जोगु घरोई पुंजी बजार को उत्साह फेरिछि। भारतीय शेयर बजार मंगलवार एप्रिल 11 रे लगातार सप्तम दिन में वृद्धि सह बंद होइछि। एही वृद्धि जोगु शेयर बजार प्राय एक मास परे पुणी थरे 60,000 स्तर पार करिछि। अन्यपटे निफ्टी बढ़ी 17,700 अंक बंद होइछि। मंगलवार कारबार सबुठ अधिक वृद्धि बैंकिंग, मेटल, ऑटो, ऑयल एंड गैस, पावर एवं फाइनेंशियल शेयर रे देखिबाकू मिलिछि। नंबर 11 हनी ट्राप मामला रे अर्चना नाग को हाईकोर्ट मिलिला जामीन। हनी ट्राप तथा ब्लैकमेल मामला रे अर्चना नाग को हाईकोर्ट मिलिला जामीन। काली अर्चना को शर्तमूलक जामीन मंजूर करिसंती हाईकोर्ट। फिल्म प्रयोजक अक्षय परिजंक पक्षरु होइथिबा एतला आधार रे नयपल्ली थाना रे होइथिबा मामला रे तांको जामीन दैछंती हाईकोर्ट। तेबे तदंतरे सहयोग करिबा, बाहर को न जीवाकू, साक्षी को प्रभावित न करिबा पई कोर्ट अर्चना को निर्देश दैछंती। तेबे अर्चना विरोध रे आउ 2टी मामला रहिथिबारु अर्चना जेल रु मुकुड़ीबेनी बोली अन्यपटे स्पष्ट होइछि। अर्चना विरोध रे श्रद्धांजलि करिथिबा एतला आधार रे खंडगिरी थाना रे होइथिबा मामला और ईडी पक्षरु चलिथिबा तदंत मामला एबे भी कोर्ट रे विचाराधीन रहिछि। नंबर 12 कांग्रेस दल विरोधी कार्य तागिद सत्वे अनशन कले पायलट। निज सरकार विरोध में अनशन आरंभ करिसेंती राजस्थान कांग्रेस वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। 2018 निर्वाचन बेले कांग्रेस जो सबु दुर्नीति अभियोग पूर्वतन बीजेपी सरकार विरोध में आनीथिला तार तदंत करा जाउ नथिबारु सचिन पायलट दिनिकिया अनशन आरंभ करिसेंती। कांग्रेस क्षमताक आसिले बीजेपी करिथिबा दुर्नीतिर तदंत करिबो बोली लोकंकु प्रतिश्रुति दैथिला। हेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4.5 वर्ष क्षमतार रहिथिले मध्य कौनसी तदंत निर्देश देइ नथिबा अभियोग करी सचिन पायलट काली शहीद स्मारकी निकटरे अनशन करुछंती। नंबर 13
1984 दंगा घटना कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलरଙ୍କ स्वर नमूना संग्रह कला सीबीआई। सिख विरोधी दंगार अभियुक्त जगदीश टाइटलरଙ୍କ स्वर नमूना को काली संग्रह करिछि सीबीआई। 1984 रे दिल्लीर पलबांगास अंचल में होइतिबा दंगा घटना रे सीबीआई टाइटलरଙ୍କୁ समन करिथिला। एही अंचल में 3 जण लोकंक मृत्यु घटिथिला। हत्या पई टाइटलरଙ୍କୁ लोकंकु उस्केइबा अभियोग होइछि। समन अनुसार काली टाइटलरଙ୍କ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब रे पहुंचिथिले। या परे नियम अनुसार सीबीआई तांको स्वर नमूना संग्रह करी अधिक तदंत आरंभ करिछि। 39 वर्ष पुराना दंगा घटना रे सीबीआई को किछि तथ्य मिलिथिला। यार सत्यासत्य जानिबा पई टाइटलरଙ୍କ स्वर नमूनार आवश्यकता थिला। तेणु तांको काली हाजर हेबा पई समन करा जायथिला बोली जणा पड़िछि। नंबर 14 आरएसएस शोभायात्रा को सुप्रीमकोर्ट अनुमति। तमिलनाडुर आवेदन खारज। तमिलनाडु में शोभायात्रा करने को आरएसएस को अनुमति देइछंती सुप्रीमकोर्ट। आरएसएस पक्षर तमिलनाडु में विशाल शोभायात्रा पई प्रस्तुति चलीथिबा बेले क्षमतासीन डीएमके सरकार यहाको विरोध करथिले। मामला कोर्ट रे पहुंचीथिबा बेले काली आरएसएस को रैली पई अनुमति मिलिछि। सर्वोच्च अदालत डीएमके सरकारक आवेदन खारज कर दैछंती। या पूर्व मद्रास हाईकोर्ट मध्य आरएसएस को रैली पई अनुमति देइथिले। याको राज्य सरकार सुप्रीमकोर्ट रे चैलेंज करथिले हैं कोनोसी सुफल पाई नाहंती। नंबर 15 निर्वाचन पूर्व संन्यास नेले बीजेपी वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा। कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन मे 10 तारिख में हेबो। एसबु भितर वरिष्ठ बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा निर्वाचन राजनीतिर अवसर घोषणा करिसंती। से आउ निर्वाचन लड़िबे नाही बोली कहिसंती। से तांको निष्पत्ति संपर्क में चिठी लिखि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अवगत करि दैछंती। से मे 10 रे हेबाकु थिबा निर्वाचन लड़िबाकु चाहुनाहंती और निर्वाचन राजनीतिर दूरेई जिबाकु चाहुथिबा चिठी रे उल्लेख करिसंती। से कहिसंती दल मते एही 40 वर्ष मध्य अनेक दायित्व देइछि। मु जणे बूथ इंचार्ज रु दलर राज्य मुख्य भाव काम करिछि। उपमुख्यमंत्री हेबार सौभाग्य मध्य मु पाइथिली। से सबु पई धन्यवाद। से निज इच्छा रे निर्वाचन राजनीति ओहरी जीवाको निष्पत्ति नैथिबा कहिसंती। नंबर 16 आईवीआरआई रिसर्च रु हेला स्पष्ट गोमूत्र मनुष्यक पई ठीक नुहे। गोमूत्र रे रही मारात्मक बैक्टेरिया। याकू सीधासड़क पान करने मनुष्यों पर ठीक नुहे। रिसर्च पर देशर प्रमुख पशु गवेषणा संस्था आईवीआरआई स्पष्ट करिछि। बरेली भित्तिक देशर ही प्रमुख गवेषणा संस्था बेस किछि दिन धरी गोमूत्र उपर रिसर्च करुथिला। या परे संस्था पक्षरु रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। इंस्टीट्यूटर भोजराज सिंह नेतृत्व में कर गवेषणा रे 3 जण पीएचडी शिक्षार्थी मध्य रही। से गवेषणा जानिबाकु पाइछंती जे सुस्थ थिबा गाई और षंडर मूत्र रे 14 प्रकार मारात्मक बैक्टेरिया रही। गोमूत्र रे थिबा इश्चर्चिया कोलाई द्वारा पेटरे संक्रमण होई पारे। यार अर्थ गोमूत्र मनुष्यों पर आदौ ठीक नुहे। रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च गेट वेबसाइट रे प्रकाश पाइछि। रिसर्च टीम नेतृत्व नेउथुबा श्री सिंह कहिसंती गाई महिषी और मनुष्यों टेस्टोरिटी नमूना को नहीं परीक्षा कर जाइथिला। नंबर 17 चाषी पुओ को बाहेले मिलिबो 2 लाख टंका घोषणा कला जेडीएस। चाषी परिवार पुओ को बाहेले मिलिबो 2 लाख टंका। जो युवती चाषी परिवार पुओ को विवाह पई राजी हेबे एही सहायता मिलिबो। कर्नाटक निर्वाचन पूर्व पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी सोमवार यह घोषणा करिसंती। निज निर्वाचनी इस्ताहार रे एही ऑफर को शामिल करी एचडी कुमारस्वामी कहिसंती जे कृषक पुओं को विवाह करुथबो महिला को तांको दल क्षमता को आसिले 2 लाख टंका देबो। चाषी परिवार को उत्साहित प्रोत्साहित करिबारे यह सहायक हेबो बोली कहिसंती। से कहिसंती जे मु जानिबाकू पाउछि कृषि तथा गरीब घरर पुओं को विवाह करने झील मैंने राजी होनाहांती। कृषकों पिलामानंक विवाह को उत्साहित करने सरकार झील मानक 2 लाख टंका देवा उचित। नंबर 18 कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन 199 प्रार्थी ना घोषणा कला बीजेपी। कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन लगी बीजेपी प्रार्थी घोषणा करिछि। प्रथम पर्यायर बीजेपी 199 प्रार्थी ना घोषणा करिछि। 199 प्रार्थी मध्य 52 जन नुआ प्रार्थी थिबा बेले 32 जन ओबीसी वर्गरू और 30 जन अनुसूचित जाति वर्गरू रहिथिबा सूचना मिलिछि। सेहिपरि एमानक मध्य 9 जन डाक्तर 5 जन आईनजीवी और 2 जन अवसरप्राप्त प्रशासक रहिछंती। एही तालिकार 8 जन महिला को प्रार्थी करा जाइछि। अनेक विधायकों को प्रार्थी तालिकारु बाद दिया जाइथिबा बेले कांग्रेस को आसी बीजेपी रे जोग देइथिबा नेता को प्रार्थी करा जाइछि। प्रार्थी तालिका नै बीजेपी साधारण संपादक अरुण सिंह सूचना दैछंती। खूब शीघ्र द्वितीय पर्याय तालिका प्रकाश पाइबो। बीजेपी निर्वाचन कमिटी दिल्ली ठारे बसी एही निष्पत्ति नैछि। एठारे मोट 224 विधानसभा सीट रहिछि। नंबर 19
मॉर्निंग वॉक बेड़े बीजेपी नेता मारणात्मक आक्रमण। बालेश्वर जिला सोर पौरपालिका नगर उपसभापति तथा बीजेपी नेता लोकनाथ राउत को मारणात्मक आक्रमण। सोर थाना निकट में दुर्वृत्त मैंने मारणात्मक आक्रमण करते। लोकनाथ मॉर्निंग वॉक रे जाइथिबा बेले ए आक्रमण होइथिला। सोर थाना ठारू मात्र 10 मीटर दूर में एभली कांड करने को दुर्वृत्त मैंने साहस करते। लोकनाथ पत्नी पौर परिषदर काउंसिलर, से जड़े बस मालिक और प्रतिष्ठित व्यवसायी मध्य। राजनैतिक विवाद एपरी आक्रमण होइथिबा अनुमान करा जाउछि। लोकनाथ काली सकाळु सकाळु चली चली मॉर्निंग वॉक रे बाहरी थिले। सोर थाना रे अति निकट में 2 जण व्यक्ति मोटरसाइकेल रे आसी तांको आक्रमण करिथिले। एक तेलेंगा कोटुरी रे तांको आक्रमण करिथिले। नंबर 20 रूसर भयंकर अग्नेयगिरी लाभ उत्कीर्ण। रूस यूक्रेन युद्ध चली बेले आउ एक विपद उभा होइछि। रूसर सबुठारु विपदपूर्ण अग्नेयगिरी शिवलुचरू लाभ उत्कीर्ण होगा आरंभ होइछि। 10 किलोमीटर पर्यंत लाभ एवं धूआं व्यापी सारिछि। विमान चलाचल में विपद आशंका थिबारु एही रूट को एबे सामयिक भाव बातिल कर जाइछि। ज्वालामुखी बड़ धरणर विस्फोरण होई पारे बोली चेतावनी जारी कर जाइछि। कामचाटकार एही अग्नेयगिरी उच्चता 10,771 फुट। 10,000 वर्ष मध्य यह 60 थर भयंकर विस्फोरण कर सारिछि। 2007 रे होइतिबा विस्फोट सबुठारु बड़ भाव विवेचना करा जाए। अग्नेयगिरी भितर लाभर परिमाण बढ़ुथिबारु आगकू बड़ विपद सृष्टि होई पारे बोली आशंका करा जाउछि। यार निकटस्थ जनबसति को सतर्क रहिबा पई परामर्श दिया जाइछि। नंबर 21 आईपीएल 2023 रोमांचकर मैच रे शेष बॉल रे जीतिला मुंबई। सोमवार परी मंगलवार मध्य आईपीएल रे आउ एक रोमांचकर मुकाबिला देखा मिली। अंतिम बॉल रे ही मैच रे फैसला होइछि। आउ शेष रे बाजी मारी नेछि मुंबई इंडियंस। प्रथमे बैटिंग करिथिबा दिल्ली अक्षर पटेल 54 रन एवं डेविड वार्नर 51 रन बड़े 19.4 ओवर 172 रन रे ऑल आउट होइथिला। जवाब रे मुंबई रोहित शर्मा 65 रन एवं तिलक वर्मा 41 रन बड़े निर्धारित 20 ओवर 4 विकेट हरई विजय लक्ष्य हासिल करि नेछि। नंबर 22 थाईलैंड संतरण चैंपियनशिप पवन जीतिले स्वर्ण। बैंकॉक आसम्पसन यूनिवर्सिटी रे चलीथिबा थाईलैंड एज ग्रुप संतरण चैंपियनशिप रे ओडिशा प्रतियोगी प्रदर्शन एपर्यंत प्रशंसनीय रही। मंगलवार पुरुष 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट रे ओडिशार पवन गुप्ता स्वर्ण पदक हासिल करिसंती। से 23.24 सेकेंड रे रेस संपूर्ण करथिले। पूर्व महिला संतरणकारी माने मध्य भल प्रदर्शन करथिले। प्रत्याशा राय 200 मीटर और 50 मीटर बैक स्ट्रोक रे रौप्य एवं 50 मीटर और 100 मीटर बटरफ्लाई रे सृष्टि उपाध्याय ब्रोंज पदक हासिल करथिले। नंबर 23 आवेश खान को तागिद दंडित हेले डुप्लेसिस। निजर औद्धतामी पर मैच रेफरी गाड़ी शुणी लखनऊ सुपर जायंट्स द्रुत बॉलर आवेश खान। सोमवार आरसीबी विपक्ष मैच को लखनऊ शेष बॉल रे जीति। यह समय आवेश अत्यंत उत्साहित होगा सह खूब जोर रे निजर हेलमेट को तले फिंगी। एथिसह बेस आक्रमणात्मक भाव सेलिब्रेशन करते। एपरी आभिमुख्य आईपीएल गवर्निंग बॉडी तागिद करेले कौन प्रकार आर्थिक जरिमाना लागू कर सेपरी पराजित दलर आरसीबी अधिनायक फाफ डुप्लेसिस आर्थिक दंडरे दंडित होइछंती। धीम ओभररेट पर डुप्लेसिस दंडित कर 12 लाख टंकार फाइन लागू होइछि। नंबर 24 चेपक इडेन रे विश्वकप मैच खेलिबा चाहूँगी पाकिस्तान। चलित वर्ष अक्टोबर नवेम्बर में भारत में दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट आयोजित हेबो। एथिमे भारत 12टी भेन्यू सर्टलिस्ट करिछि। सेगुड़िक हेला चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, राजकोट, बांगालोर, दिल्ली, इंदौर, गौहाटी, हैदराबाद और धर्मशाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतर इडेन गार्डन और चेपक रे मैच खेलिबा ने आईसीसी निकट में आग्रह प्रकाश करिछि। अवश्य एने चूड़ांत निष्पत्ति बीसीसीआई नेबो। भारतीय बोर्डर जैनिक अधिकारी नाम प्रकाश न करने कही सूचना दैछंती जे पाकिस्तान विपक्ष मैच 2टी स्थान में होई पारे। एथिପାଇଁ उत्तरांचल और केन्द्रांचल कौन एक भेन्यू चयन करा जाई पारे। जदि यह हुए ताहले चेपक और दिल्ली रे जेते दूर संभव मैच खेला जाई पारे। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।